Hi guys, this is Tutu Yogi. In case you are listening this voice for the very first time, you can go check out my social media handles. And this is season 4 of Stephen Speaks. And today I have a very special guest with me. His name is Sonika. Sonika ma'am, welcome to the podcast. मुझे हाउ डू आई नो मैम आई थिंक अगर कुछ लोगों ने माधुरी वाला पॉडकास्ट सुना हो अगर नहीं सुना तो आप जाके सुन सकते हैं तो you mentioned me about you. You like had very good, tell me great words about you. So I thought to connect with you. So thanks to Madhu first for connecting us. So Nika ma'am is a tarot reader and also knows many other healing modalities, Reiki, and many others. तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे. And above all, she's Astro Talks top tarot reader basically. So that's a huge thing. So thank you, ma'am, first of all, for being on my podcast. I'm really grateful कि आप आज यहाँ पे आए मेरे गेस्ट बन के. So I'll pass it over to you. आप अपनी journey के बारे में थोड़ा बता दो and what are you currently doing, and then हम वहाँ से we'll take this conversation further. Thank you, Smriti. Thank you for inviting me for this podcast. I'm very happy to be here because since when Madhuri, as we talked about, when she mentioned about you also, I was very happy because when I heard that podcast, I was really impressed that, the things are going so nice and there are so many people doing so much good. Yeah. So that was a wonderful. And when she told me and when you connected to me, and I was more than happy to be here. So thank you again very much for this opportunity. So about me, I'm a, if I start from my journey, if you say that from the very start, so I'm a Yeah. professional qualified lawyer. Oh So wow. Huh. yes. So I have done CA as well, though I have not completed it, but I have done CA as well till the last group in their final year. Then I left it because I didn't feel that that is my calling. Then I went for law, I did my law, and then I practiced for good years. Then, the things get rolled on. Then I was practicing for good number of years. Then uh, I had kids, so it was very difficult to keep on practicing and having your kids at home and all that. So then I thought that I'll take a sabbatical and then I'll be doing something. Maybe I'll be taking a break and then I'll be joining back. But when I took that sabbatical, I just realized that I don't feel like going back again to the course. Though it was a wonderful environment there. Then I started, my coaching classes for law and commerce students. And it was wonderful because within a span of 1 year, I had almost 35 to 40 students with me. And it was a great response. I ran that those Wow. coaching classes for good a number of years, maybe 5 to 6 years. Then again, I felt like, no, something is amiss. And then suddenly, I don't know why, maybe you can say it was a calling from the tarot reading or something like that. And I just gotten back again to you say, I got back again to I mean, this scenario. Why I said got back, I'll tell you that later on, just Huh. when I finish this thing. So Uh-huh. then learned Reiki. That was the first thing. I learned Not Reiki, then I learned a Reiki. lot Reiki Hmm. healing. That was Hmm. the first thing I learned because I was feeling that something is really, missing, and I don't want to. The feeling of getting bodiless was very prominent at that time. So Hmm. I would keep it. I'm using a very beautiful word, going bodiless, but if I say it in crude language, I didn't want to live. Hmm. So Hmm. somehow that happened, and then the Reiki and the tarot came back again. Tarot Okay. came Got back again because tarot was something I learned when I was a kid. When I was a Oh, kid, I learned in a very playful manner from an Irish lady wow. Huh. when I was on vacation, and she gifted me the first deck as well. But I never paid any heed to it, and though I was in constant communication with that lady, and And it was also That was Rider Waite deck only, or it was some other deck? no, it was some other deck. Some It other was deck. some other. Okay.
Yes, Okay. it was some other deck. In fact, interestingly, that was quite a long back, quite an old deck, probably some 150 years back. It dated back to 150 years. I don't have that deck with me because it was totally rotten. And because when Oh, she gifted me, it was already on the kind of that state. So I used that deck for a bit. But somehow maybe it was my, bad luck or something like that. That deck got destroyed. oh. Deck got destroyed by those termites. I feel वो उस deck का काम हो चुका होगा. I don't feel that it was bad luck. Maybe it works was done in your life. In your life. Hmm. Yeah. So then, Hmm. then I was not, getting in touch with too much with tarot and all that. But then tarot happened again. Then tarot happened again, and one of my friends, she said that I did the tarot reading, and I just attended one class with her. It was not a class; she was doing a workshop, and I just went along with her. And since we all knew each other, so they told me, okay, you can. They allowed me to sit, and then I realized, yeah, this is my calling. I bought the deck again and again. I mean, I bought the right away deck firstly. That was my first deck. I mean, after that, and then I started doing. Then I felt like no, but I started doing it for myself because I wanted to be in that kind of zone where I wanted to know where my calling is. And I don't know why, but I really felt that the cards are, speaking to me. They are, Wow. talking to me. They are telling me so many stories which I never had. And in fact, those stories were not the stories of people. Those were the stories of my life, my past lives. And it was, Hmm. I still have my goose. Moving goosebumps. Yeah. Yeah. It was beautiful. And then I started exploring again. And nowadays, I don't know how many decks I have. I really don't. I can understand that. I can understand that. Okay. So that's how you so whenever I think for healers like you and us, like if we go back and see everything makes sense. Like retrospect me, you can see all dots are connected and you were meant to be where you are right now. So that's how the journey unfolds for I think most of people who are in some light working activities, right? Hmm. So then, how like you started your tarot journey and other modalities as well? Like उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद what happened? हाँ, I seriously, then I felt like that I'm blessed. I am हाँ, very blessed. I don't know. हाँ. I didn't choose anything. I mean, things started choosing me one after You, another. They just started happening to me. I really do know. Then I feel like, yeah, this is what you call when you're blessed. I mean, you're in that state of your life when you are being given so much, when you really feel like, oh, I have my hands full, I really don't know where to keep it, and then suddenly, the universe is telling, no, no, this is the place you can fit it here, or you can fit it there. I mean, it was something like that, and I really don't know how many modalities I learned at that point of time. I cannot tell you. Even I don't remember right now exactly, but if I, I was once I was doing a kind of a smaller video for one of my friend, and when we were just got stuck that what I have done, then he suggested me, why don't you write down whatever you have done? And I did that, and then I realized it is almost 15 to 16 modalities minimum I have done. wow, And great. it and there are some modalities which I specifically learned, but there are certain things which I never learned, but they Mm, came on its own internally. I mean, if I talk about herbs, I mm, never studied. I never studied herbs from anyone. If I mm. talk about fragrances, I never studied fragrances from anyone. Then if Wow. we talk about essential oils, I never learned essential oils from anyone. But I don't know why. Why I somehow knew the healing properties, and when I started exploring, I was so Wow. amazed that yes, it is there. And I have when I made certain courses as well for on herbs, essential oils, and then for a longer period of time, probably maybe the teaching is something which I can never go out of it. So probably for another 9-10 months in the I think 2018, 19, when there was not many people who were conducting the workshops. I'm talking pre-COVID era Mm. when nobody was conducting workshops. At that point of time, I conducted workshops on WhatsApp back to back from August to next September
August 2018 to September 2019, in which I was doing all such kind of workshop for harmonious relationships, for money, for chakras, and Wow. whatnot, for these Mm. herbs and all those. Then I got again, I got like, "Nahi, I have to do something else." Again, I got into that. Huh, And I huh. thought it would be again, getting back to then I again got back to tarot. Then I started Wow. exploring things in Mm. tarot. And right now also when we spoke about Madhuri as well, as you know her very well. Huh. So Mm. we have spoken a lot about tarot, that she's equally passionate, Huh, like me. huh. Right. When True. we spoke a lot that this is what we're gonna do. We are researching, we're trying to connect that how we can, the medical tarot. We Huh. have something called medical astrology, but we don't have anything called medical tarot. So now we are trying to work upon it. Yeah, but I tell you one thing. With when I started exploring tarot more, I realized one thing, because every card, since we have only 78 cards in the decks, and in which 22 are major arcanas and other 56 are minor arcanas, and out of that also Yeah. 16 cards are court cards and 40 cards are the pip card. I realized one thing, that every card has a zodiac, every card has a element, every card has a planet. So it means True. there are some kind of astrological symbolizations as well, some I connections as agree. well. I And agree. then I started exploring on that aspect. Now I know very well when it comes, like when I pull Hmm. out a card. I'm just giving you an example. Yeah, yeah, So yeah, yeah. Go ahead. that is a very tried and tested thing, I must tell you. Hmm. Somebody came to me, and I'm talking about some 1 year and a half. That Hmm. was the first thing when I tried to experiment that thing, and it turned out to be right. So somebody came to me. It was a reading, and her father was not well. He said, "My father has Hmm. cancer, mouth Hmm. cancer." Hmm. So I was like, okay. So she wanted certain remedies. So one thing is very clear, even as an astrologer or as a tarot card reader, you are never supposed to do life expectancy questions. When she Hmm. came, I knew somehow the things are not that great, but of course, I could not tell this thing to a daughter who had come with a lot of hope. Then I realized, acha, usne mujhe, okay, fine, now I should rephrase it. She did not tell me that there is some kind of mouth cancer. She Hmm. told me father is suffering from a very chronic illness, and Okay. there is a very different. So I pulled Hmm. out a card. That was the first, I pulled Huh. out a card, and then I got out a card that was a card of cancer. That was card Hmm. with chariot. I mean, the seven Okay. number card in Hmm. major arcana, that was cancer. And cancer chariot card is basically is a Huh. zodiac cancer. So I felt, this must be something regarding to cancer. Then she told me that it is something with, that something. And then pulled out another card. Then it was Hmm. Empress, again major arcana. So it was a Venus thing. So Hmm. I said, okay. Then I just realized that it is We. somewhere, Huh. Venus as well there. There's a so there must be some kind of chronic illness, right? Cancer. Huh. But I was not very. So I Huh. just said that, are you? If I am not wrong, I'm just taking a leap of faith. Is there something regarding to some RBCs, or because I used very technical term with her? Because you don't want to use cancer right away. Huh. Huh. Exactly. So then she told me very clearly कि मैंने कहा कुछ आरबीसीज का इशू है नेक से ऊपर के एरिया में. Then she Hmm. told me, ma'am, yes, he Hmm. has mouth cancer. So mouth Hmm. अब क्या है? This is your Venus. second house. Second, Yeah, yeah. yes, Second this is house. Venus. This is Hmm. Venus, Yeah, and yeah, it was yeah. cancer. So cancer. So Huh. I realized this does work.
but I'm हाँ, experimenting. Then somebody, when again something like that, again the cancer thing. I said specifically, I told you why I'm talking about cancer thing also, only because I started working upon one thing first because I wanted to establish this fact that is it the going the right way, and that person came up. Then it is again, the lady had breast cancer. Then again, it was a Venus dasha, but हम्म, again it was something related to Rahu as well. So somehow I figured it out कि आप चाहे पतरी दिखाओ चाहे आप टेरो कार्ड्स देखो, इफ यू आर वेल अवेयर ऑफ द हम्म, सिचुएशन कौन सा कार्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, यू you कैन can tell इजीली many फिगर. things. हाँ, Uh, मतलब yeah, I yeah. was I was Hmm. just hoping. I'm so sorry. No, 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 So, no, no. Yeah, tarot yeah. is something Go. that excites me. Yeah, yeah. I agree. Yeah, I can understand. Yeah. I was just trying to figure out, whenever there's some kind of reading going, we pull out so many cards. So I was just trying, these are days from the past, you can say 3 months almost. I'm trying to take as much as less cards out of the deck and do the Huh. whole thing, because I want to Wow. concentrate. Because my aim is like that, just one single card from a deck, and you can tell everything. Whether it is a question That's from but it is a huge. question of your health, your finances, your love relationship or Uh, marriage, or your any physical issues. I'm Amazing. not sure that how much I'm going to be successful into that, but that is my, Got it. I mean, that's huge actually. And वैसे मुझे इससे एक रील याद आ गई. Once I posted on Instagram, it was like I when I saw like astrology, numerology, chakras, tarot, and obviously two three. When you go on deeper level, na, or even Reiki, you will understand how interconnected are these on certain levels. कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अकेले मोडालिटी में व्हेन यू विल बी एबल टू रिलेट एवरीथिंग यू विल बी एबल टू सेंस many things about a person, their behavior and what is happening in their life. And कुछ चीजें तो when you are a healer तो आपको energy read करके ही समझ में आ जाएगी. Like even you can read me like without even pulling my card कि हाँ ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके बारे में ऐसे ही बता सकती हूँ. Right? I mean I feel that कि you can a person like you can tell it like even before talking, just seeing me and मैं थोड़ी सी भी बात कर लूँ उतने में, right? So again, like coming back to then, how did AstroTalk happen? Because AstroTalk is huge thing currently on internet going on. They got a huge funding of 200 crores. I've heard that. So how did on its own. Can you imagine? uh, I mean, uh, I'm so blessed again, I would say. I'm so blessed that uh, people, now I hear that people, they go, they interview, and they wait for months and years to get onto the astronaut. But it अच्छा, happened like this. What happened wow. when she was Uh, already on astro? hmm, She was a business astronaut, but she never used to sit. And I'm talking about COVID time. uh, This happened. I mean, we were just talking, we were just having a lot of discussion. And yes, I tell you what uh, happened. I used to make a lot of healing candles post अच्छा, pre COVID era. So मैं बहुत healing candles बना, ये भी तब बनती थी जब मार्केट में कभी कोई ये कैंडल था ही नहीं. हाँ ही नहीं, हाँ, अब तो बहुत है. तो बहुत है. और उस हाँ, टाइम पे ये कैंडल्स मेरा इतना एक्सपोर्ट भी होता था और मैं खुद नहीं करती थी. हाँ. ये कैंडल्स जाती थी वन ऑफ द, आई विल नॉट नेम द No, इंस्टीट्यूट, no, that's in call. हाँ, दे आर फ्रॉम गाजियाबाद से हैं वो लोग, एंड अच्छा, देर अ बिग नेम, देर अ बिग नेम. उनकी कैंडल्स मैं बना के बेचती थी. एंड व्हाट दे यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ गुड पैकिंग, दे यूज्ड टू पैक इट इन अ वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल पैकिंग, एंड दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट इट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड. wow. सो अब वो उस टाइम पे मेरा सामान जो है वो पीस के हिसाब से नहीं जाता था, केजीस के हिसाब से नहीं जाता था, टन्स के हिसाब से जाता था. कितने टन Wow. निकालना. सो इट वाज लाइक दैट. हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगी कि इट वाज अ वेरी प्रोलॉन्ग, इट हैपेंड जस्ट फॉर मे बी 9 to 10 months, but 9 to 10 months में it was a beautiful thing. But then COVID happened. और मैं छोटे छोटे जो मेरे जो कैंडल्स बाकी मैं सिर्फ उनको सेंड करती थी जो मेरे क्लाइंट्स थे. माई कैंडल्स वर नॉट इन ओपन मार्केट. Okay, तो got it. अगर
suppose if somebody is coming, they wanted a reading and they wanted a remedy, तो मैं उनको बोलती थी ये remedy है, and then I always used to say market से ले लो. आज हाँ, की डेट में भी आई नेवर स्ट्रिक्ट एनीबॉडी कि मेरे से ये चीज ले लो या वो कर लो. एंड बट जैसे कि ये मार्केट में नहीं मिल रहा है मैम, आपके पास है, आप बता दो. तो मैं तब मेरा होता था मेरे पास है, लेना है तो ले लो, नहीं तो इट्स नॉट लाइक दैट, और यू कैन हाँ, गेट इट, यू नो. फिर वो क्या हुआ, कोविड आ गया. वो सारा काम मेरा बंद हो गया. बंद कर हाँ, क्या दिया, मेरा बंद हो, हो क्योंकि गया। कोविड के फ्री थी. मैं बहुत हम्म, फ्री थी उस टाइम पे, मैं क्या करूं. तो उस टाइम पे भी मेरा टैरो पे रिसर्च बहुत चलता था, बहुत ज्यादा. उस टाइम पे तो मुझे याद है, माय हस्बैंड एंड माय किड्स यूज्ड टू यू नो वॉच द टीवी द होल नाइट, और मैं अपना आराम से बैठ के स्टडी टेबल पे दूसरे रूम में मैं अपना पढ़ती थी 2-3 बजे तक. देन आई यूज्ड टू स्लीप देयर ओनली. मेरी आज की रूटीन भी ऐसी है, बिकॉज नाउ इट इज आई एम लर्निंग एस्ट्रोलॉजी. तो आज भी मैं 2-3 बजे तक पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ रात वाओ। के. हाँ, तो बात क्या हुआ कि अच्छा, आई टोल्ड यू दैट टैरो पे बहुत चल रहा था. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी इज आल्सो यू नो अ टैरो बा. तो हम उसके साथ डिस्कशन चलती थी बहुत ज्यादा, अच्छा ये अच्छा वो. एंड शी वाज ऑन एस्ट्रोटॉक, एंड शी टोल्ड मी, बात सुन, तू एस्ट्रोटॉक क्यों नहीं ज्वाइन करती है. मैंने कहा मैंने क्या करना है एस्ट्रोटॉक ज्वाइन करके. मैंने कहा वैसे ही जो लोग हैं वो तो वो नहीं हैंडल होते, तो एस्ट्रोटॉक में क्या करूंगी. तो देन शी टोल्ड मी नहीं, एस्ट्रोटॉक के साथ बड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज यू हैव योर ओन लॉग इन एंड लॉग आउट टाइम. आप जब मर्जी काम करो, जब मर्जी छोड़ दो. इसलिए किया, चलो ठीक है. देन शी गेव मी नंबर ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव, उनके एक एग्जीक्यूटिव का, कि इसको ना आप वो कर लो. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट मे 2020. यही यही कोई 26-27 में होगी आज की डेट के आसपास. शी टोल्ड मी कि करो. तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ठीक है. तो मैंने टेक्स्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे आई वांट टू गेट ऑन टू एस्ट्रोटॉक, तो प्लीज मुझे बता दो प्रोसीजर क्या है. तो उन्होंने मुझे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज दिया, लिंक भेज दिया था कि इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर लो. ओके, मैंने रजिस्ट्रेशन करके भेज दिया. देन आई फॉरगॉट, मैं भूल गई. मैंने हाँ, सीरियसली नहीं लिया. मई तो था ही खत्म पे, पूरा जून निकल गया. माय फ्रेंड टोल्ड आस्क्ड मी, यार तेरा वो क्या हुआ. मैंने कहा यार उसका कोई मैसेज ही नहीं आया. हाँ, हाँ, तो मैंने हाँ, भी नहीं ध्यान दिया. शी सेड मी यू आर स्टूपिड, एक बार उसको टेक्स्ट तो कर. मैंने कहा अच्छा. मैंने टेक्स्ट हाँ, किया, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया. देन अगेन इट वेंट लाइक दैट. देन वाज 1 जुलाई. हाँ, शी टोल्ड मी कि तूने तेरा क्या हुआ. मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ. शी सेड तू कितनी कितनी इडियट है, तेरे को जब मैं बोल रही हूँ कर ले, तो कर क्यों नहीं रही है. मैंने कहा यार मेरे से ना किसी के पीछे नहीं भागा जाता. हाँ, शी राइट। गेव मी अ नंबर, कहती इनसे बात कर सीधा, कि ये बंदा ना आपका एग्जीक्यूटिव को फोन नहीं उठा रहा. मैंने कहा कौन है. कहती इनका नाम है पुनीत गुप्ता, सीईओ ऑफ एस्ट्रो. हाँ, तो मैंने हाँ, क्या किया, आई स्टिल हैव ऑल द रिकॉर्ड विद मी. मेरे ख्याल से मैंने फर्स्ट को भी नहीं किया था शायद. एक मिनट, मेरे ख्याल से 2 जुलाई को मैंने पुनीत को सीधा टेक्स्ट किया कि मैं आपको पढ़ के ही बताती हूँ. हाँ, हाँ, मैंने दैट्स पुनीत को इंटरेस्टिंग टेक्स्ट, एक्चुअली। हाँ दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ, मैंने 1:23 पे उनको टेक्स्ट किया 2 जुलाई 2020 को. हाय, आई एम सोनिका, टैरो कार्ड रीडर. अ रीडर फ्रॉम योर साइड टोल्ड मी अबाउट योर साइट. आई वांट टू जॉइन एस्ट्रोटॉक एज अ टैरो कार्ड रीडर. So I was talking to Tushar, but he's not reverting back. I have filled your registration form. Please guide me how to proceed further. ये मैसेज कर दिया. हाँ, 1:35 पे रिवर्ट आता है, प्लीज सेंड मी योर टोकन नंबर. आपको ईमेल आया होगा. मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं मिला. और मैंने उनको ये स्क्रीनशॉट भेज दिया कि ये देखो हाँ, मेरे पास कुछ हाँ, नहीं आया. तो हाँ, उन्होंने कहा दोबारा डालो अभी रजिस्ट्रेशन. मैंने कहा ओके. ये 2:20 पे कहते मैं अभी आपको कॉल कराता हूँ. मैंने कहा ओके. मैंने भेज दिया, और मैंने 2:21 पे लिखा लेट मी रजिस्टर एंड गेट बैक टू यू. ये बात हुई है 2:21 पे. हाँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज दिया गया. एग्जैक्टली 2 या ढाई घंटे बाद मुझे वहां से मैसेज आ फोन आ रहा है कि मैम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना है. एंड कैन यू इमेजिन वेयर वाज आई. आई वाज no. I was at, sorry? द बेस्ट शॉप. Okay, okay, okay. मैंने कहा भैया अभी तो मैं बाहर हूँ, तो मुझे 10 मिनट दो, तो अब हम करते हैं. तो उन्होंने कहा मैम ऐसा है, हम ना आपको ना 7 o'clock आपका ना इंटरव्यू शेड्यूल कर देते हैं, तो आप प्लीज ले लेना. मैंने कहा ओके. मैं 7 बजे वापस आ गई घर पे. जब भी मैं वापस आई 7 बजे इंटरव्यू हुआ, एंड अ गाय कॉल्ड अप, एंड
उन्होंने मुझे पूछा, क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने मुझे एक लेडी का नाम दिया कि ये नाम है, बताओ उनके हस्बैंड का इस टाइम पे तबीयत का क्या है, वॉट एवर द टास्क थी मैंने उनको बता दिया। उन्होंने मुझे बताया कि जिस लेडी के हस्बैंड के बारे में उन्होंने पूछा था वो खुद थे। अच्छा, ओके। उन्होंने अपने नाम से नहीं पूछा, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम से पूछा, एंड एट दैट टाइम ही वाज इन हॉस्पिटल बिकॉज ही वाज अ कोरोना पेशेंट। ओह! कितना ओह! इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। वाओ! ठीक है। और ये जो है इस टाइम पे सीईओ के जो वो हैं वीपी, आई थिंक नाम इसका वीपी पता नहीं क्या है, वीपी शायद टेक्निकल साइड के वीपी डेवलपर हैं ये। हाँ, 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 हाँ। इनका नाम है राजीव, हाँ, हाँ, राजीव कुमार। हाँ, एक मिनट, इनको क्या आया था लास्ट ईयर, हाँ, वीपी टेक्नोलॉजी, वाइस हाँ, प्रेसिडेंट टेक्नोलॉजी, राजीव कुमार। ठीक है। हाँ, हाँ। इनका कि मैम ठीक है, हो गया, डन एंड डस्टेड है, हम हमारी तरफ बट से डन है, हमें प्लीज ये चीज भेज दीजिए, हमें पैन कार्ड चाहिए आपसे, ये चीजें चाहिए। मैंने दूसरे दिन भेज दी, अपलोड। इन्होंने मुझे कहा कि आप ये वाला डाउनलोड करो और यहाँ पे ये वो कर यहाँ पे अपलोड कर दो। मैंने कर दी। दूसरे दिन मैं कितने बजे, दूसरे दिन, हाँ हाँ, हाँ, दूसरे दिन मैं 3 बजे लाइव थी एस्ट्रोटॉक, वाओ! वाओ! लाइव थी एस्ट्रोटॉक पे, और मुझे, मैंने कॉल्स भी ले ली, चैट्स भी ले वाह! लिए, और उसके बाद मुझे टीम का मैसेज आता है, मैम आपकी ट्रेनिंग करनी है। बोलो भाई, पहले बोले हाँ, फिर? मैं, भाई हाँ, ट्रेनिंग तो मेरी ऑन द जॉब हो गई। चेक। हाँ, हाँ। So it was like that. Again, I told you that it happened. It happened because it was meant to happen like that only. तो वो हाँ, दिन और आज का दिन है, आई एम ऑन एस्ट्रोटॉक, मैं एस्ट्रोटॉक पे ही हूँ, एंड टच वुड, आई मस्ट से, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत देखो काम में ऊपर नीचे होता है, दैट इज अ हाँ। डिफरेंट थिंग, बट एस्ट्रोटॉक हैज डेवलप्ड एंड सो वी हैव Yeah, yeah, amazing. And yeah, indeed, you are one of the top tarot readers for them. So that's great. That's दैट great. आई डोंट नो। I mean, I'll consider you that with seeing maybe your ratings and everything, but yeah. Ratings are good, and on AstroTalk as well. If I am not wrong, I have my, एक मिनट मैं अभी बताती हूँ। AstroTalk पे ही मेरी जो इस टाइम पे जो मेरे readings हैं, that is exactly right now when I'm talking to, it's 47,285. Wow, wow. Give me that number, na, Jem. I'll write that in your intro as well. That's great. In Hmm. chat, I had given 267,000 minutes, and for Wow. calling, I had given 136,000 minutes. So, Wow, I need that numbers. Like I need that numbers for the intro. But amazing. But that's really really amazing, यार. It's been a long journey. तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस है बता दो, कोई है तो, कोई भाई किसी ने कुछ अजीब सा ही क्वेश्चन पूछ लिया या फिर कुछ भी। हाँ, जैसे जैसे कोई बताओ, कोई कोई फनी सा इंसिडेंट बताओ। अरे फनी से इंसिडेंट तो होते ही है। एक तो सबसे पहली बात ये है कि अच्छा क्या होता है, आपको एस्ट्रोटॉक से, कि अगर आप उससे अवेयर होगे तो इनका क्या होता है कि दे हैव प्रमोशनल ऑफर्स, हाँ, प्रमोशनल ऑफर्स के से ना वो फ्री एक मिलता हाँ, है वो 10 वो मिनट फ्री मिलता है। हाँ, हाँ, आई नो। 10 मिनट 10 मिनट जो भी है, वो डिपेंडिंग अपॉन देयर कि वो उनको क्या ऑफर मिला है, तो उनको हाँ, मिलता है। वो हमारे पास आते हैं, तो वी कॉल देम पीयूज, प्रमोशनल ऑफर्स हमारे पास पीओ होते हैं। हाँ, समटाइम्स उसमें हमारे पास कैटेगरीज होते हैं, समटाइम्स वी गेट पेड फॉर दैट, समटाइम्स दे आर टोटली फ्री, वो हमको करना होता है हमारे एंड से, क्योंकि एस्ट्रोटॉक के साथ, क्योंकि एस्ट्रोटॉक इज, बिकॉज आई हर्ड लेटर ऑन दैट एस्ट्रोटॉक इज नॉट चार्जिंग एनी प्लेटफॉर्म चार्जेस राइट नाउ, बट ओके। आई heard there are platforms who are charging platform fee. या एस्ट्रोटॉक इज नॉट चार्जिंग। हाँ, Yeah. प्लेटफॉर्म Apart फी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी से कनेक्ट करोगे तो उसकी जो फी है लाइक वो पेड होती है 10 मिनट के बाद। हाँ, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो that हाँ, तो डेफिनेटली वो तो एस्ट्रोटॉक ऑब्वियसली उन्हें ऐप चलानी है तो वो तो बनता भी है, इट्स अ बिजनेस। हाँ, हाँ, देयर आर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको एक मिनिमम मेंटेनेंस फी देनी होती है। देनी होती है। ट्रू, ट्रू, So गेट यहाँ इट। पे एस्ट्रोटॉक में there is nothing like that. They हाँ, maintain at their own end, हाँ, and
ठीक है, वो अपने जो हमारे बाकी डायनामिक्स हैं वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन दे डोंट चार्ज एनी प्लेटफॉर्म फीस। तो ऑब्वियसली व्हेन दे आर गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म एंड दे आर नॉट चार्जिंग एनी प्लेटफॉर्म फी, तो आपको थोड़े से मतलब इट्स अ गिव एंड टेक, तो ट्रू हमें थोड़े से वो पीओज करने होते हैं। करने होते हैं, हाँ, सबसे दैट्स अ पार्ट ऑफ योर मजेदार जॉब एज वेल ना, हम लोग भी तो जॉब के अंडर कुछ कुछ चीजें करते हैं, हाँ, दैट्स फाइन, हाँ बिल्कुल, जी, सॉरी, हाँ, फिर तो सबसे मजेदार आते हैं वहां पर, हाँ, अच्छा, सबसे फ्री मजेदार, वाले, बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आते हैं। एक कई तो, और कैसे लिखेंगे, चैट आती है, ज्यादातर चैट होती है उनकी। हाँ, चैटी फ्री है, हाँ, आएगा, आपके पास पता है, आपके पास 5 मिनट है, तो मैं जैसे आगे से लिखूंगी हाय हाउ मे आई हेल्प यू, तो आगे से मुझे आएगा जॉब। अभी मैं क्या समझू जॉब से? जॉब है नहीं है, जॉब में दिक्कत है, लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो, एग्जैक्टली exactly. अभी ये अच्छा जॉब, या फिर आ जाएगा लव प्रॉब्लम्स, हाँ, लव प्रॉब्लम। शादी अब है, डिवोर्स है, बच्चा नहीं हो रहा, क्या दिक्कत है, लव, एग्जैक्टली, अच्छा अभी मेरे को क्या समझ में आएगा आपको क्या पूछना है? और फिर कई तो इतने मस्त होते हैं, वो तो आगे से कहते हैं आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप बताओ। भैया, एस्ट्रोलॉजर मैं बताऊंगी, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन भैया 5 मिनट में मैं तेरी पूरी जन्म कुंडली कैसे निकालूं? एग्जैक्टली, ट्रू, 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 मैं कैसे निकालूं? So when we have a very specific time foundation ना, you should come up with a specific question. क्वेश्चन, राइट, हाँ, एक तो वो था। अभी एक पीछे मेरे को एक आया, बड़ा मजेदार है ये, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। 2007 बॉर्न लड़का मुझे कहता है, "अ, मुझे ना आप मेरे पास्ट के बारे में कुछ बताओ जो कोई ना जानता हो, ताकि मैं आप पे ट्रस्ट कर सकूं।" अपना मैं उसको 3 मिनट में ट्रस्ट कराऊं, फनी, और तीन वो भी में 2007 बॉर्न बच्चा मुझे कह रहा है कि आप कितने साल का मुझे हुआ, कुछ 15, 16, 17, 18 साल, एग्जैक्टली, हाँ, 2007 का बच्चा, 15-16 उसको लगा हुआ है अभी। लगा होगा, हाँ, 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 तो मुझे, मैंने उसको बोला कि मैंने कहा ट्रस्ट इज वेरी सब्जेक्टिव, सो आई डोंट थिंक दैट आई कैन डू दैट। मैंने कहा यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, नहीं फिर भी बताओ मेरा पास्ट। देन आई कुड मेक आउट, मैंने कार्ड जैसे ही पहले उठाया, मैंने कहा यू हैव मैसिव इमोशनल इश्यूज विद योर क्लोज्ड वंस। हाँ, हाँ, सिंपल एक ही लाइन लिखी, हाँ, मुझे हाँ, लगा मेरे जॉब के बारे में बताओ। अब 2007 का बॉर्न बच्चे को जॉब कब मिलेगा? अभी इसमें मैं कार्ड, एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं 21 के कार्ड बाद ही नहीं भी, मिलेगी, हाँ, 21 के बाद ही मिलेगी पहली जॉब, कुछ तो ग्रेजुएशन करेगा ही, हाँ, एग्जैक्टली, तो चलो जो भी है, वो जाते जाते मेरी रेटिंग में मुझे *1 दे के गया कि फेक, ठीक है। तो मुझे पता था इससे मुझे यही मिला, बिकॉज एज अ रीडर आपको पता होता है कि कोई किस एनर्जी के साथ है और आपको क्या देके जाएगा। एग्जैक्टली, ट्रू, 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 उसने लिख दिया फेक, मैंने कहा ओके, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी एंड पे जो हमारे अपना प्रोसीजर होता है कि भाई मैं आपने इसके सुना, लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दूं सपोर्ट टीम के साथ कि भाई दिस हैज हैपेंड, नाउ यू चेक इट आउट, यू ऑडिट द चार्ट एंड रिवर्ट डू द नीडफुल। हाँ, अभी मैं उससे फ्री हुई हूँ, देखा है दोबारा वेट लिस्ट में बैठा हुआ है। हाँ, फिर क्यों बैठा है जब तेरे को ट्रस्ट ही नहीं है तो, एग्जैक्टली exactly, ये बहुत होता है, एंड इट्स नॉट ओनली मी एज एन एस्ट्रोलॉजर। ये सबके साथ होता है, मतलब ये मेरे को पता है क्या लगता है इस चीज का, क्या, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, तो नहीं नहीं, पीपल बताइए। पीपल डोंट इवन ट्रस्ट यूनिवर्स। तुम यूनिवर्स पे जिसको ट्रस्ट नहीं है वो तुम पे क्या ट्रस्ट करेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो सरेंडर स्टेट में ही नहीं है, तो जो यूनिवर्स पे सरेंडर्ड नहीं है वो आपको पे तो क्या ही सरेंडर होगा। तो जिसके ट्रस्ट इश्यूज पहले से ही इतने सारे हैं अपने आप को लेके यूनिवर्स पे ही, आई डोंट थिंक के मतलब एज ए हीलर भी तुम कुछ ज्यादा कर पाते हो उन लोगों के लिए। एज ए हीलर, एज ए रीडर आप उन्हीं लोगों के लिए कुछ कर सकते हो जो खुद एक सरेंडर्ड फॉर्म में आए कि यार ये बंदा मुझे कुछ बता रहा है तो शायद कुछ हेल्प होगी मेरी और मैं इसे ले सकूंगा। कुछ लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को जज करने आ रहे हैं, भाई ये प्लेटफॉर्म फेक है, कई लोगों ने वो फैला दी, तो चलो मैं, तुम्हारे अंदर वो नहीं है कि मेरी कोई हेल्प हो सकती है, अगर मुझे 10 मिनट फ्री मिला है तो मैं कुछ काम की बात कर लूँ, नहीं है वो चीज। उसको तो छोड़ो, पेड क्लाइंट्स भी आते हैं, वैसे वो बहुत कम होते हैं यूजुअली। मैंने एक चीज देखी, क्योंकि फ्री नहीं ना मिल रहा होता, तो उनको पता हाँ, होता है कि वी आर यूजिंग आवर ओन मनी, देन दे आस्क वेरी सीरियस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस टू, बट बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, दोस हु आर नॉट विलिंग टू absorb what you have to say because they want reading as per them, कि आप ये बोल दो कि मे दिस हाँ, इज,
मेरे पास एक लड़की आती है और वो रेगुलर आती है। रेगुलर क्या, वो दिन में 3 से 4 बार आती है। As Oh if she my. has to speak to me, and she comes from outside India. She pays me Wow. almost double the amount every time when Wow. she speaks to me. Whatever my Wow. price I'm quoting at my display price, quoting for the Indian clients, that is double for her. If I'm Good. charging 50 rupees from Indian client, she pays 100 rupees per minute to speak to me. वो दिन से 3 से 4 बार आती है, एंड शी वांट्स टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स। उसके क्वेश्चन वही होते हैं, और कई बार मैं खींच जाती हूँ। मैं उसको ये बोलती हूँ, सी प्लीज अंडरस्टैंड दिस कैन नॉट हैपन। वो फिर घूम घूम के, एंड कैन यू इमेजिन, शी इज माई क्लाइंट फ्रॉम द लास्ट 4 years। And still the same. Still the same. She's not, and sometimes she shouts as well कि नहीं आप ऐसे नहीं बोल रहे हैं। मैं बोलती, आवाज नीचे, आवाज हाँ, नीचे। मैंने कहा, अब हाँ, नाउ लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। हाँ. अब उसके साथ अब सिस्टम ऐसा, एज शी इज टॉकिंग टू समवन फ्रॉम द फैमिली। थेरेपिस्ट हो गए ना आप उसके एक तरह से हाँ, अब तो. हाँ. एग्जैक्टली। बट देयर And आर she's paying पीपल for a therapist now rather than a मतलब astrologer. हाँ. actually, you're so right. See, Hmm. astrologers or the tarot card readers, they And are almost, anyways a therapist. I agree. I agree. yes, बट Hmm. देयर आर पीपल जो आते हैं, वो आपसे बात करेंगे कि मेरी इससे शादी होगी। मैं कहूंगी नहीं होगी। Hmm. सपोज मुझे दिख रहा नहीं होगी, देन दिल फिर कम भी they बैक। want. Hmm. नहीं नहीं, फिर वो घूमेंगे, अच्छा नहीं लेकिन ये देखो हमारा रिलेशनशिप ऐसा था वैसा था। देन ऑफ कोर्स आई गो इन डिटेल कि हाँ ये चीज ऐसी थी, लेकिन उस टाइम पे ये सिचुएशन वैसी चल रही थी, बट यू नो दिस वाज द रेड फ्लैग एंड ऑल दैट। नहीं तो फिर देखो, इमोशन फीलिंग्स हैं। अगर फीलिंग्स हैं तो मैं बोलूंगी फीलिंग्स हैं, मैं कहूंगी कि फीलिंग्स हैं, तो मैम फिर बताओ ना शादी कब होगी। अरे I know that. I know that. People get actually obsessed with things, and then especially with some specific people, and then they come with the reading. Agar maybe I'm a tarot reader, I don't do it so much professionally, but there are still people who come to me and they're like, इस बंदे से ही होगी, होगी तो कब होगी? अब तुम्हें दिख रहा है कि नहीं हो सकती, और तुम्हें बिहेवियरल पैटर्न से भी दिख रहा है द पर्सन इज नॉट इवन इंटरेस्टेड, बिकॉज जिस हिसाब से अ फीमेल इज टॉकिंग, अगर उसको डाउट है, वो टैरो पे आ रही है, तो 50% चांसेस द अदर पर्सन इज नॉट इवन इंटरेस्टेड, क्योंकि अगर आपको कोई इतनी एश्योरेंस दे सकता होता तो आपको एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से लेनी नहीं पड़ती, राइट? तो 70% तो आप वहीं पे समझ जाओ ना कि आप, एंड देन चलो 30% चांस हो भी तो भी भाई है ना, यू आर राइट कि पीपल वांट टू हियर व्हाट दे वांट टू हियर। अगर वो मैच कर जाए तो रेटिंग दे दो 5 5.5, ठीक है, और अगर वो थोड़ा सा भी मिसमैच कर जाए तो तुम अपना गुस्सा उस रेटिंग पे निकाल दो, ऐप पे निकाल दो, हर चीज में निकाल दो. लंबे लंबे मैसेज आते हैं, फेक रीडर, क्या ऐप है, फेक, फिर क्या ऐप. वेस्टेज ऑफ टाइम, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। बट हाँ, ठीक है बट आई थिंक सुधी, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एज अ टैरो कार्ड रीडर, ये आपके बस में नहीं होता। नहीं होता. ट्रू. यू आर जस्ट सेइंग व्हाट द कार्ड्स आर. अब कार्ड्स में स्वॉर्ड्स आ रहा है तो तुम जबरदस्ती हाँ थोड़ी बोल दोगे किसी चीज के लिए कि हाँ यस, कार्ड स्वॉर्ड्स दिखा रहा है, डार्क कार्ड्स आ रहे हैं, तुम्हारी चीजें ऊपर दिख रही है सर्फेस पे, तो तुम, और फिर अगर तुम ऑनेस्ट ही नहीं हो, तुम वो बोल रहे हो जो बंदा सुनना चाह रहा है और वो उसको पे कर रहा है, तो फिर देयर इज अगेन अ मिसमैच. इसका मतलब यू आर नॉट ट्रू टू योर प्रोफेशन. तो वो तो एक अलग से ही, एक और ही आपने कर्मा क्रिएट कर लिया फॉर योर सेल्फ, विच इज अगेन बैड. हाँ. Being true to my cards, if I'm हाँ. not being true to what intuition I am getting, what message I am getting, यार तो फिर ऊपर यूनिवर्स विल आल्सो से ना कि तुम जाओ यार, तुमने बोलना ही झूठ है, तो मैं तुमको मैसेज ही क्यों दूं। एग्जैक्टली. एंड मेरे को लगता है उस केसेस में ना आपकी प्रैक्टिस भी स्टॉप होने लग जाती है. आई यू आर फील सो, के कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने आने लग जाएंगी अगर आप कुछ मैनिपुलेशन कर रहे होगे कार्ड्स में, या फिर आप कुछ इधर की बात उधर करके बता रहे होगे, तो योर प्रैक्टिस विल स्टॉप एंड यू वोंट एबल टू डू एनी काइंड ऑफ हीलिंग इवेंचुअली. हीलिंग्स की अगर हम बात करें तो हाँ. एस्ट्रोटॉक देयर इज अ प्रोविजन, आप रेमेडीज अच्छा. बता दो, आप अच्छा. रेमेडीज बता दो, आप उनके लिए रेमेडीज करो। सो हम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, there's a section called Astromall, जिसमें मतलब you can register yourself for the different kind of healings, कि anybody can come and they can book you for the healings and all that, but I वाह. never got myself registered। क्यों यार, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, मेरा किसी ABC ने मुझे बुक कर लिया, मुझे पता ही नहीं मैं हीलिंग करूंगी क्या उसकी। एग्जैक्टली.
अच्छा, ये थोड़ी दूसरा फिजिकल चीज ज्यादा होती है ना, फिजिकल चीज ज्यादा होती है। वो भी होगा, और दूसरा जो मुझे लगता है, सी आई एम अ विकन एज वेल, सो आई हाँ, कास्ट स्पेल्स, मैं वाओ, स्पेल्स भी करती ग्रीन विचिंग, राइट। हूँ। हाँ, ग्रीन विचेस टाइप के मेरे वही स्पेल्स होते हैं। या तभी आई मैंने एग्री। स्पेल्स में मैं तभी गई थी, क्योंकि जब मैं स्पेल्स करती थी ना उस टाइम पे अपने लिए, तो क्योंकि मुझे वो कैंडल, जब आपको हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल और कैंडल्स पता है, तो यू कैन डू द ग्रीन विचिंग अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। तो मैंने अब स्पेल्स भी कर, लेकिन आई नेवर गॉट माई सेल्फ रजिस्टर्ड, क्योंकि मुझे ना घबराहट होती है। मुझे हम्म घबराहट इस बात की होती है कि भैया मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिसकी मुझे पता ही नहीं कि मैं किसके लिए क्या कर रही हूँ, एंड आई शुड डू हम्म इट। सो व्हाट आई हम्म डू, कहीं अपने आप को एस्ट्रोमॉल पे रजिस्टर नहीं किया। व्हाट आई डू, जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं यूजुअली, और वो भी ये नहीं कि आप पहली बार आ रहे हो तो मैं पहली बार ही आपको रेमेडी बता रही हूँ, मतलब इफ यू टॉक टू माय क्लाइंटेल जो ऑलरेडी है एस्ट्रोटॉक पे, मैं हमेशा उनको रेमेडी खुद दे देती हूँ, भैया ये रेमेडी खुद कर लो। हम्म देयर आर रेमेडीज व्हिच दे कांट डू, उसके लिए मैं हम्म ये बोलती हूँ कि ये रेमेडी है, ये करानी पड़ेगी, आपका मन है आपको किसी से करानी है, एस्ट्रोमॉल पे लोग हैं उनसे करानी है, उनसे करा लो। इफ यू वांट टू गेट इट डन बाय मी, जस्ट लेट मी नो, आई विल सजेस्ट, मैं सजेशन हम्म भेजूंगी, फिर वो बुक करेंगे। हम्म और ऑनेस्टली मैं आई एम नॉट वाउचिंग अपॉन इट, बट ऑलमोस्ट, अगर मैं रेमेडी सजेस्ट हम्म की है, तो अगर मैंने किसी को, अगर मतलब 1 to 10 की स्केल पे अगर मैंने 10 रेमेडीज सजेस्ट की हैं, तो 8 बुक हुई ही हुई है। गॉट इट। क्योंकि ठीक है, पीपल हैव देयर ओन माइंडसेट एज वेल, 8 बुक हुई, और यूजुअली रिपीटेड रेमेडीज लेते हैं लोग, बिकॉज इट क्योंकि वर्क्स मैं ऑब्वियसली। रिपीटेड लेते हैं, और मैं बिल्कुल कोशिश ही नहीं करती हूँ कि किसी को समझो, बिकॉज यू नो व्हाट, व्हेन आई वाज लर्निंग एस्ट्रोलॉजी ना, अभी कर ही रही हूँ, वॉज नहीं, आई एम स्टिल लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, तो फर्स्ट थिंग जिनसे मैं सीख रही हूँ ना, उन्होंने ना एक बात बड़ी अच्छी बोली थी जो मेरे ना दिल को बड़ी हिट करके, पर खैर ये तो अब बोली, मैं तो काफी देर से प्रैक्टिस कर रही थी, बट यू नो दैट द यूनिवर्स वो आपके लिए हम्म ऑलरेडी रेमेडी आपके थ्रू करा रहा होता है। ककर आ रहा होता है। उन्होंने उन्होंने बोला, मुझे नहीं, उन्होंने पूरी क्लास को ये बोला था कि कोई भी रेमेडी किसी को बताने से पहले पहले तो वो रेमेडी खुद करो, अच्छा। खुद के ओके। ऊपर करके देखो, अपने किसी की क्या वो वर्केबल है। दूसरा, तुम किसी को कोई रेमेडी दे रहे हो ना, तो उसको पहले कोई 10, 5, 15, 20 रुपए, 100, 125 की रेमेडी देके देखो, हाँ कि हाँ। वो खुद से कर सके। इफ दैट इज वर्किंग ना, फिर तुम उसको चाहे 5 लाख का स्टोन बोल दो पहनने के लिए, ट्रू। क्योंकि तब तुम्हें पता है वो वर्क करेगा। ये बहुत अगर अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा कि तुम पहले 2 चीजें, पहली तो खुद से करके देखनी है, तुम्हें लगता हम्म है ये चीज वर्कआउट करती है, तो हम्म आप करोगे। अब मैं इसी इसी सिलसिले में मैं आपको एक बात बताती हम्म हूँ। यू नो दिस इज सेकंड हाउस, एंड या हाउसेज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या ठीक है या ना। या सेक्रल। तो क्या, या हाँ, हम्म से वो आपका पीछे से चला पीछे जो है जाए, हाँ हाँ हाँ। एरिया, तो या क्या होता है कि जिनको पाइल्स का इशू, हाँ हेमोरॉइड्स होता है, उनके हाँ। लिए क्या किया जाता है, क्योंकि ये सेकंड हाउस वीनस आ जाता है, वो शुक्र वो आ ओ, जाता है, स्कॉर्पियो आ जाता है, स्कॉर्पियो तो आ जाता है। तो हम्म जहां पे जिनको तो वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि आपने क्या करना है, सुबह सुबह आपने दूध लेना है, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, आपने दूध लेना है, कच्चा दूध, उसमें आपने आधा नींबू निचोड़ना है, हाँ। और बिना हिलाए वो पी जाना है। हम्म ऐसे फर्क पड़ता है। अब क्यों, क्योंकि आपने केतु को और शुक्र दोनों को बाइंड कर दिया 8 हाउस में, Oh, they that's will not great. they will not cause problem to you। That's great actually. और Hmm. इंटरेस्टिंगली ये तो रेमेडी मुझे पता थी कि हाँ, one of my friends, she was taking a diet from a very renowned dietitian, and she was Hmm. facing certain issues in पाइल्स Hmm. के, तो उसने डाइटिशियन को बोला मुझे ये पाइल्स का इश्यू है, तो डाइटिशियन उसको ये रेमेडी दी। See how much things are medically and astrologically connected. Amazing. एग्जैक्ट Amazing. एग्जैक्ट और
जो ये आपने बात बोली ना कि पहले आप उसे 150 125 की, मेरे को एक बात और लगती है, बताना मैं सही हूँ या गलत, इट विल बी माई लर्निंग टू, हर किसी की रेमेडी हर किसी को नहीं लगती। देर आर पीपल, आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाते हो, देन देर इज अ ट्रस्ट बिल्डिंग हैपनिंग, देन यू आर एबल टू प्रिडिक्ट मोर, यू आर एबल टू कनेक्ट टू दैट एनर्जी, तो आपकी रेमेडी लगेगी बिकॉज यू आर हैविंग दैट जेन्युइन इंटेंशन फॉर दैट पर्सन। तो वो भी आप पे ट्रस्ट करता है। अगर ये है कि एक बंदा बोल रहा है ये कर ले, उस बंदे को ट्रस्ट ही नहीं आप पे, वो कर रहा है क्योंकि चल ठीक है इसने बोल दिया कर ले, उसको उसको 100 की भी नहीं लगेगी, उसको 500 की भी नहीं लगेगी, उसको 5 लाख की भी नहीं लगेगी। नहीं तो जो अब आप लगेगी। 100 150 की देते हो तो आप ट्रस्ट बिल्डिंग भी कर रहे हो एक तरह से, एंड यू नो दैट एनर्जी आर जेन्युइनली कनेक्टिंग, राइट? You are so right. उसमें देखो सबसे बड़ी फैक्टर क्या होता है, देखो फाइनेंसेस इज समथिंग, चाहे आप हो चाहे आपके हाँ घर के लोग हैं, यहाँ हाँ तक कि हस्बैंड वाइफ के बीच में फाइनेंसेस प्ले अ बिग। हाँ, ट्रू, एग्रीड। अगर हाँ आप देखोगे, यू आर ऑल्सो टेरिफाइड रीडर, आप हम्म, देखोगे कोई लेडी अगर आती है उसके इश्यूज होते हैं घर में, उसका एक एक इशू ये भी होता है, घर का खर्चा नहीं ठीक से चलता, या ट्रू, पति कमाता नहीं है उतना अच्छा, या पति खर्चा नहीं देता। ट्रू, ट्रू, हस्बैंड वाइफ के बीच में भी है। आप सपोज मेरे पास ऑलरेडी एक दुखी बंदा आता है, परेशान है, और उसका परेशानी उसकी फाइनेंसेस है, मैं उसको कहती हूँ कि भैया तू ऐसा कर, तू ना नीलम पहन ले, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो खर्चेगा ही नहीं, देखो रोटी खर्च, खाने के लिए पैसा नहीं है, नीलम कहाँ से खरीदूंगा? तो एग्जैक्टली पॉइंट है। ऑब्वियसली मुझे कुछ छोटी सी ऐसी रेमेडी देनी है जहाँ पे चीजें उसके लिए अच्छी हो सके। अब जो आपने बात बोला कि हर रेमेडी हर एक को फिट नहीं होती, बिल्कुल ठीक कहा आपने, रीजन अब मैं बताती हूँ। कुछ ना बड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज होती हैं, जैसे कि जब हम बात करते हैं इसकी फाइनेंसिस की, इसकी छोटी सी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। इसकी छोटी सी रेमेडी क्या होती है, जब आपकी फाइनेंसिस का बहुत इशू हो रहा हो ना, तो छोटी सी मिट्टी की मटकी होती है, ठीक है, छोटी सी मिट्टी की मटकी ली, उसमें आपने डाला कच्चा दूध, उसको ढका और उसको फ्रीज कर दिया। अब आपने क्या किया, आपने मंगल और शुक्र को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि वाओ, आपके पास काम आएगा और आपके पास पैसा भी आएगा, ठीक है। अब पता चला आपका मंगल तो ऑलरेडी सही नहीं है, तो आप अच्छा, आपके वो ऊपर वो रेमेडी ठीक से काम करेगी नहीं करेगी। ये चीज है। अगर आपका शुक्र नीच है, आप उसको बांध रहे हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको और सफोकेट कर रहे हो, क्या ये रेमेडी हम्म, वर्क करे? नहीं नहीं करेगी। करेगी। तो उसके लिए आपको बेसिकली कोई भी रेमेडी बताने के लिए, अगर मैं टेरो कार्ड्स निकालती हूँ तो मुझे देखना पड़ता है कि ये बंदे की मनी का इशू आ कहाँ से रहा। हो सकता है मनी, उसका मनी का इशू पास्ट लाइफ किसी पैटर्न से आ रहा हो सकता है उसका मनी का इशू जो है वो किसी अपने एंसेस्टर्स की तरफ से आ रहा, तो जिस भी तरफ से आ रहा हो, हमें वो रेमेडी करनी है। वो ऑनेस्टली आई एम सो सॉरी टू से लाइक दिस, बट मैंने एक चीज देखी है, इंस्टाग्राम पे ना बहुत रील्स आती हैं, ये कर हाँ, लीजिए हो जाएगा, वो कर लीजिए तो हो जाएगा। गलत नहीं है, बिल्कुल सही बोलते हैं, बिल्कुल मैं सही रेमेडी, हम्म, बट सब पे फिट नहीं बैठती। और किसी का भी हो भी जाता तो ज्यादातर केसेस में इसलिए होता है कि ठीक है चलो मे बी एस्ट्रोलॉजिकली कुछ वर्क कर गया। सेकेंडली वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है ना, आपने कुछ बहुत ही दिल से कर लिया तो वो वैसे ही लग जाएगा यार, क्योंकि आपने उसमें इतनी एनर्जी दे दी, इतनी अच्छी इंटेंशन डाल दी, तो वो वैसे ही वर्क कर जाएगी। फिर आप चाहे इलायची रख लो, चाहे आप क्लव रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, है ना? तो हाँ इसीलिए तो जैसे रेमेडीज के लिए कोई भी, जैसे कभी किसी क्लाइंट को कोई रेमेडी बोलनी हो तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि भैया ये रेमेडी है, प्रोसीजर ये है, कर लो। क्योंकि जिस जिस इंटेंशन से, जिस शिद्दत से आप कर पाओगे ना, आपके लिए कोई भी नहीं कर पाएगा। ट्रू, ट्रू, हाँ, बट ऑब्वियसली देयर आर पीपल जो नहीं कर सकते। अब मुझे किसी को सपोज आप कैंडल बर्निंग के लिए बोलो, कंटिन्यूसली आपको पता है कैंडल बर्न करनी है लगातार, जैसे छह हाँ, सात कई बार ऐसे सिचुएशंस होती हैं, आपको कैंडल बर्न करनी है। तो आप जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे स्मोक डिटेक्टर्स है, वो लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं कर तो पाते, फिर ट्रू। उनको कहते हैं कि मैम आप कर लो, प्लीज आप कर दो हमारी तरफ से। तो हम्म, फिर करते हैं, फिर ऐसा नहीं है, करते हैं, क्योंकि बट अल्टीमेटली वो भी कार्मिक डेप्ट है ना, इफ दे आर पेइंग यू मनी एंड यू आर डूइंग फॉर देम, तो डेप्ट तो रिलीज हो ही रहा है ना, गुड फॉर दैट, राइट? तुम्हारी तरफ से एफर्ट नहीं लग रहा बट पैसा तो जा रहा है ना, एंड द एनर्जीज दैट यू आर पेइंग, सो वो वर्क करेगा फॉर श्योर, अच्छा करेगा, अच्छा करेगा बल्कि। हम्म, जब हमारे घरों में पाठ बैठा होता है,
कभी हम्म, जैसे आपने देखो फैमिलीज बिठाती हैं, हमने जी महामृत्युंजय का पाठ बिठाया है, हाँ जी हाँ हमने अखंड पाठ रामायण का ही बिठाया है, या हम गुरु ग्रंथ साहब का बिठाया, तो आप खुद तो पाठ नहीं कर रहे होते सारा। हाँ, ट्रू 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 ट्रू। दैट्स द सेम थिंग। Energetically चीजें obviously when people are working toward one goal, energetically things are working. वही चीज है। या या बट सोनिका मतलब अभी ये मैं डिस्कशन को कंटिन्यू कर सकती हूँ आराम से आधा घंटा और, बट सीइंग द टाइम लाइक 50 मिनट्स हो गए। पॉडकास्ट ऑडियो होता है तो शायद इतनी रिटेंशन 50 मिनट्स ऑलरेडी हो गए। बट आई वुड रियली वांट टू टॉक टू यू अगेन समटाइम्स इन अपकमिंग सीजन्स में बी। बट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपसे डिस्कस करके, एंड टू द लिसनर्स हु आर लिसनिंग, शी हैज सच अ गुड अमेजिंग एनर्जी एंड ऑरा। मतलब यू कैन गो चेक आउट हर प्रोफाइल, मैं डिटेल्स वगैरह डाल दूंगी। बट अमेजिंग सोनिका, मतलब बहुत ही माधुरी वॉज राइट, लाइक नाउ आई कैन completely relate to where she was coming from while she was telling about you. So amazing, thank you so much. And any last notes to, yeah, any last notes to listeners you want to tell, then we can maybe end it. Anything? Yeah. You just trust in yourself, trust the Hmm. universe, because Universe. whatever is happening, you have chosen for it. And when you have Yeah. got yourself into it, Yeah. definitely the universe has a way. It will show you the way to walk out of it as well. That is Wow, it. So amazing, it's the that's matter of amazing. stone. अमेजिंग, थैंक्स यार सोनी, दिस इज रियली रियली नाइस, थैंक्स। मतलब बहुत ही मजा आ गया मुझे ये डिस्कशन करके। जैसे रात को तो ना एकदम से एनर्जी आ गई, अब पता नहीं नींद नहीं आएगी मुझे कई देर तक, बिकॉज एकदम से मेरी सारी एनर्जी फुल वो हो गई है अब क्राउन तक। एंड आई वाज हैविंग लॉट ऑफ क्राउन सेंसेशन while I was talking to you, because I think I was getting lot of downloads in your form, so thank you for that as well. Thanks a lot. तो चलो सोनिका, फिर हम दोबारा मिलेंगे। टेक केयर, एंड टू लिसनर्स, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे ग्रेटफुल। आई विल सी अनदर वन। बाय, थैंक यू, थैंक यू, So nice to बाय, थैंक यू।